یہ واقعہ ایک مغرور شہزادی کا ہے۔ اسے اپنے حسین و جمیل ہونے پر بہت ناز تھا۔ وہ ہر کسی کا مذاق اڑاتی اور کسی کی بھی عزت نہیں کرتی تھی۔ اسے اس کے والدین نے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، یہاں تک کہ اس کے والد نے ایک دن ناراض ہو کر یہ قسم اٹھا لی، اب میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بھکاری کے ساتھ کروا دوں گا، تب اسے پتا چلے گا کہ اصل میں زندگی کیا ہے۔ باپ نے غصے میں یہ قسم اٹھائی اور ایک بھکاری کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ پھر اس کا کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو سیرت اور صورت کے اعتبار سے بہت نیک تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت نیک خاتون تھی۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ اکلوتی بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ماں باپ نے اسے بڑے ناز و نعم کے ساتھ پالا تھا۔ زندگی بھر اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوئی۔ ماں باپ کے لاڑ پیار نے شہزادی کو اتنا بگاڑ دیا کہ وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اور وہ ہر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ اپنے حسین و جمیل ہونے پر، شہزادی ہونے پر، مالدار ہونے پر اسے بڑا فخر تھا۔ وہ کسی کے گورے پن کا مذاق اڑاتی، کسی کے کالے پن کا مذاق اڑاتی، کسی کی آنکھ کا، کسی کے ناک کا، کسی کے قد کا، کسی کے کان کا، کسی کے نام کا، یعنی جو بھی اس کے پاس آتا وہ اسے ذلیل کرتی اور اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کرتی۔ شہزادی کے والدین نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے کو تیار نہ تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب شہزادی جوان ہو گئی، یعنی وہ شادی کے لائق ہوئی، تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل نظر آنے لگی۔ اسے اپنے حسن و جمال پر اور زیادہ فخر ہو گیا۔ شہزادی کے شادی کے لائق ہوتے ہی دور دراز سے اس کی خاطر رشتے آنے شروع ہو گئے، لیکن شہزادی اپنی عادت کے مطابق ہر کسی میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب نکال کر اس سے شادی کرنے سے منع کر دیتی۔ سینکڑوں بادشاہ زادوں کے، دولت مندوں کے رشتے آتے رہے لیکن وہ ہر کسی کا انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کی اس حرکت سے اس کے اپنے ماں باپ تنگ آ چکے تھے۔ آخرکار بادشاہ نے ایک دن یہ اعلان کروا دیا، تمام وہ لوگ جو میری بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں فلاں تاریخ کو وہ میرے دربار میں اکٹھا ہو جائیں۔ میری بیٹی ان سب کو دیکھے گی اور دیکھنے کے بعد وہ خود پسند کرے گی کہ وہ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ اعلان کر دیا گیا لوگ تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی قریب آ گیا۔ صبح سے بادشاہ کے دربار میں آنے والوں کی بھیڑ لگ گئی۔ اس دور کے بڑے بڑے بادشاہ زادے، وزیر زادے، بڑے بڑے کاروباری اور سپہ سالار، یعنی جو اپنے آپ میں کوئی نام اور اسٹیٹس رکھتے تھے وہ بادشاہ کے دربار میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اب پورا دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آخرکار بادشاہ نے حکم دیا کہ اب ہماری شہزادی کو لایا جائے۔ شہزادی سج سنور کر اپنی خادماؤں کے ساتھ دربار میں آتی ہے اور ایک ایک کر کے وہاں موجود تمام لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ شہزادی نے اپنی عادت کے مطابق خادماؤں کے سامنے ان تمام آئے ہوئے مہمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے آدمی کے پاس گئی جو بہت زیادہ گورا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شہزادی نے کہا، یہ تو بالکل سفید چوہے کی طرح معلوم دیتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی زور زور سے ہنسنے لگی اور شہزادی کے ہنسنے کی وجہ سے اس کی خادمائیں بھی مسکرانے لگیں۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس کے بعد شہزادی آگے بڑھی۔ جو شہزادہ آگے بیٹھا ہوا تھا اس کی ناک تھوڑی چپٹی تھی۔ اسے دیکھ کر شہزادی نے اپنی خادماؤں سے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، ایسا لگتا ہے یہ پہلے سے کہیں سے ناک کٹا کے آیا ہے۔ کیا بتاؤ میں کسی نکٹے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب شہزادی کو ہنستا دیکھ کر خادمائیں بھی ہنسنے لگی۔ وہ آگے بڑھتی ہے۔ آگے جو وزیر زادہ بیٹھا ہوا تھا اس کا رنگ تھوڑا سا پھیکا تھا، یعنی وہ نہ گورا تھا نہ کالا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد شہزادی کہتی ہے، اس کا رنگ تو دیکھو، یہ آخر کون سے درجے میں آتا ہے؟ اس کو گورا کہیں گے کہ اس کو کالا کہیں گے؟ اپنی شکل دیکھا نہیں اور مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش لے کر آ گیا۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ شہزادی کی خادمائیں بھی اب ہنسنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے کسی کے کان کو لے کر، کسی کی آنکھ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کے رنگ کو لے کر،
किसी के बाल को लेकर, किसी के बैठने के तरीके को लेकर, किसी के पेट को लेकर, किसी की मूंछों को लेकर, किसी की दाढ़ी को लेकर वो एक एक करके सबका मजाक उड़ाती रही। जैसे जैसे वो मजाक उड़ाते आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बादशाह का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा था और महल के अंदर मौजूद तमाम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि बादशाह ने अपनी बेटी की शादी के लिए हमें नहीं बुलाया है, बल्कि हम सबको जलील करने के लिए, हमारा मजाक उड़ाने के लिए बादशाह ने बुलाया है। अब वो देखते देखते आगे बढ़ती जा रही थी। एक शहजादा जो दाढ़ी मूंछ वाला था उसके करीब पहुंची तो ठहर गई और ठहरने के बाद अपनी सहेलियों से मुखातिब होकर कहती है, इसकी शक्ल तो देखो, ये शक्ल से बिल्कुल फकीर मालूम देता है और ये मुझसे निकाह करना चाहता है। अगर ये वाकई शहजादा है तो क्या अपना हाथ मुंह भी नहीं धो सकता? इसके चेहरे पर तो ऐसा लगता है जैसे मकड़ी का जाला लगा हुआ है। ये कहकर उसका मजाक उड़ाती है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। अब बादशाह के बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। बादशाह गुस्से में अपने तख्त पर खड़ा हो जाता है। उसे गुस्से में देखकर मलिका भी कांप जाती है। बादशाह बड़े दरबार में ऐलान करता है, मेरी बेटी के लायक कोई भी नहीं है। अब सुन लो, मैं भी कसम खाता हूं अपनी बेटी का निकाह अब मैं किसी भिखारी के साथ करवाऊंगा, किसी फकीर के साथ करवाऊंगा। ये किसी बादशाह के साथ, बादशाह ज़ादे के साथ, वजीर के साथ, वजीर ज़ादे के साथ, ये किसी दौलतमंद के साथ, ये किसी कारोबारी के साथ ब्याहने के लायक नहीं है। अब इसका निकाह किसी भिखारी के साथ ही होगा। जब बादशाह ने गुस्से में ये ऐलान किया, शहजादी कांप उठती है। दरबार में मौजूद तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के गुस्से को देखकर दरबार से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तमाम लोग जा चुके थे। बादशाह गुस्से में अपने कमरे में आता है और अपनी मलिका से कहता है, ये सब हमारे लाड़ प्यार का नतीजा है। इसे लोगों से बात करने तक की तमीज नहीं है। ये चार लोगों के दरमियान उठने बैठने के लायक नहीं है। इसने मेरी नाक कटवा दी। इस तरह से गुस्से में बादशाह अपनी बीवी के सामने अपना गुस्सा उतार रहा था। शहजादी अपनी खादिमाओं को लेकर अपने कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद एक आवारा गवैया यानी एक भिखारी कहीं से गाता गाता महल के करीब आता है और बादशाह की खिड़की के करीब खड़े होकर वो जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। अब बादशाह ने खिड़की से झांक कर देखा, एक आदमी खड़ा था, कपड़े फटे पुराने थे, सर के दाढ़ी के बाल उलझे थे और वो गाना गा गा कर लोगों से भीख मांग रहा था। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर उस भिखारी को बुला कर लाओ। अब बादशाह के सिपाही भागते हुए जाते हैं, उस साइल को अपने साथ लेकर बादशाह के महल में आते हैं। बादशाह कहता है, मैंने तुम्हें गाता हुआ सुना, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। रुको, हम शहजादी को बुलाते हैं, हम गाना सुनना चाहते हैं। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादी को मेरे कमरे में लाया जाए। थोड़ी देर के बाद शहजादी बादशाह के कमरे में थी। अब बादशाह ने उस भिखारी को हुक्म दिया, अब तुम गाना शुरू करो। भिखारी अपनी आवाज में गाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज वाकई बहुत खूबसूरत थी, उसका अंदाज भी बहुत खूबसूरत था। बादशाह की बीवी और शहजादी तीनों उसके गाने को सुनते हैं। काफी देर तक वो गाना गाता रहा। इसके बाद बादशाह ने कहा, बस करो, अब तुम थक गए होगे। वाकई तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा अंदाज भी बहुत बेहतरीन है। अब मैं तुम्हें इस गाने के एवज इनाम देना चाहता हूँ। चूंकि आवाज बहुत अच्छी है, अंदाज बहुत अच्छा है, तो इनाम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और जानते हो, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ऐसा नायाब तोहफा दूंगा जो आज से पहले तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा। वो भिखारी हैरत से बादशाह की तरफ देखता है कि आखिर ये बादशाह मुझे क्या देगा। बादशाह कहता है, मैं इनाम के तौर पर तुम्हारा निकाह अपनी बेटी के साथ करवाता हूँ। क्या बताओ, तुम मेरी बेटी को कबूल करोगे? जब भिखारी ने यह सुना तो हैरान रह जाता है। शहजादी कांप जाती है, मलिका भी घबरा जाती है। मलिका कहती है, आप क्या कह रही हैं?
बादशाह ने कहा, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। जाओ काजी को लेकर आओ, चंद गवाहों को बुला कर लाओ, मैं अपनी बेटी का निकाह इस भिखारी के साथ करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद ना चाहते हुए भी काजी को हाजिर कर दिया गया। अब बादशाह ने चंद लोगों की मौजूदगी में उस भिखारी के साथ अपनी शहजादी का निकाह करवा दिया। तमाम लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। बादशाह ने आखिर गुस्से में ऐसा कैसा फैसला किया? अपनी बेटी की जिंदगी को अपने हाथों बादशाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। निकाह के बाद बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हारा निकाह इस भिखारी के साथ करा दिया है, अब ये तुम्हारा शौहर है। अब तुम इस महल में नहीं रहोगी, बल्कि तुम्हारा शौहर तुम्हें जहां रखेगा तुम वहां रहोगी। ये जो खिलाएगा पिलाएगा तुम वो खाओगी पियोगी। फिर बादशाह ने उस आवारा गवैये से मुखातिब होकर कहा, मैंने तुम्हारा निकाह अपनी बेटी के साथ करा दिया है, अब तुम अपनी बीवी को साथ लेकर जहां जाना चाहो जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। वह आवारा गवैया यानी वो भिखारी उठा और महल के कमरे से बाहर निकलने लगा। शहजादी अपनी माँ से लिपटकर ज़ारो कतार रोती है और ना चाहते हुए भी मजबूरन अपने शौहर यानी उस भिखारी के पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों महल से बाहर निकल चुके थे। सफर करते करते वो दोनों अब उस रियासत से बाहर निकल जाते हैं। शहजादी आज से पहले कभी इतना पैदल नहीं चली थी। वो पूरी तरह थक के चूर हो चुकी थी। वो कभी चलते चलते बैठ जाती, कभी उसके पांव लड़खड़ाने लगते, लेकिन वो भिखारी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। शाम करीब थी। अब मजबूरन शहजादी भी अपने शौहर के पीछे पीछे तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही थी। अब ये दोनों मियाँ बीवी सफर करते करते एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां पर बहुत ही लंबा चौड़ा और खूबसूरत बाग मौजूद था। उस खूबसूरत बाग को देखते ही शहजादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शहजादी अपने शौहर से यानी उस भिखारी से पूछती है, क्या तुम जानते हो ये इतना खूबसूरत बाग भला किसका है? इस पर उसका शौहर जवाब देता है, शायद तुम्हें याद होगा तुम्हारे महल में एक दाढ़ी मूंछ वाला शहजादा आया था तुमसे निकाह करने के इरादे से, जिसका तुमने दाढ़ी और मूंछ की वजह से बहुत मजाक उड़ाया था। ये बाग उसी शहजादे का है। जब शहजादी ने ये सुना उसे बड़ा मलाल हुआ और वो मन ही मन में सोचने लगी, मैंने कितना बुरा किया, काश मैंने उस दाढ़ी मूंछ वाले शहजादे का मजाक न उड़ाया होता। अगर मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हो जाती तो कम से कम वो इस भिखारी से तो अच्छा ही था। लेकिन अब शहजादी के पास सिवाय अफसोस करने के और कोई रास्ता न था। वो दोनों सफर करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी शिकारगाह नजर आती है। उस लंबी चौड़ी शिकारगाह को देखते ही शहजादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शहजादी दोबारा अपने शौहर से हैरत के साथ सवाल पूछती है, क्या तुम जानते हो ये शिकारगाह किसकी है? इस पर उसका शौहर जवाब देता है, वही दाढ़ी मूंछ वाला शहजादा जो तुमसे निकाह करना चाहता था, जिसका तुमने मजाक उड़ाया था, ये शिकारगाह भी उसी की है। अल्लाह अकबर। जब शहजादी ने ये सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब सिवाय रंजो मलाल करने के उसके पास कोई और रास्ता न था। सर झुकाए झुकाए शर्मिंदगी के साथ वो अपने शौहर के पीछे पीछे चली जा रही थी। अब वो दोनों सफर करते करते एक शहर में दाखिल होते हैं। बड़ा ही खूबसूरत शहर था, चारों तरफ हरियाली थी, लोग बड़े खुशहाल नजर आ रहे थे। जब शहजादी ने उस शहर को देखा, देखने के बाद कहती है, क्या तुम बता सकते हो ये किसकी रियासत है? इस पर उसका शौहर फिर से जवाब देता है, वही दाढ़ी मूंछ वाला शहजादा वही इस रियासत का मालिक है। जब शहजादी ने सुना तो उसे और अफसोस हुआ। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा ही खूबसूरत महल नजर आता है। शहजादी ने कहा, क्या ये महल भी उसी दाढ़ी मूंछ वाले शहजादे का है? इस पर उसका शौहर कहता है, तुमने सही पहचाना, ये महल भी उसी शहजादे का है। अब शहजादी एक एक चीजें देखती जा रही थी और मलाल व अफसोस करती चली जा रही थी। अब महल को पार करके वो दोनों आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक झोपड़ी थी, वहां पहुंचकर वो भिखारी रुक जाता है। शहजादी कहती है, तुम यहाँ क्यों रुक गए? इस पर वो भिखारी कहता है, यही मेरा मकान है और आज से तुम्हें इस मकान में मेरे साथ रहना होगा। शहजादी ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मैं भला यहाँ कैसे रह सकती हूँ? तुम मेरे लिए कहीं कोई और इंतजाम कर दो, मैं इसमें नहीं रह सकती।
उस पर उसका शौहर कहता है, मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम्हें रखने की, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं तुम्हें जहां चाहूं वहां रखूं और तुम्हें रहना भी पड़ेगा, यही शरीयत का हुक्म है। आखिरकार शहजादी ना चाहते हुए भी अपने शौहर के साथ झोपड़ी में दाखिल हो जाती है। अब वो भिखारी कहता है, मैं बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें खरीद कर लाता हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई कर लो। शहजादी आज से पहले उसने न कभी झाड़ू लगाया था, न कभी कमरे की साफ सफाई की थी। आखिरकार मजबूरन वो घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। उसका शौहर जाकर थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल बाजार से लेकर आता है और आकर कहता है कि लो, इससे रोटियां बनाओ और चावल तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो शहजादी जिसने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुद्दाम और गुलामों और खादिमाओं के साथ गुजारा था, अपने हाथ से जो पानी भी नहीं पिया करती थी, आज वो इस हाल में थी। मजबूरन अपने शौहर की खातिर वो खाना बनाना शुरू करती है। शौहर देखता है कि मेरी बीवी को कुछ भी आता जाता नहीं है। वो अपनी बीवी को डांटता नहीं बल्कि कहता है, मैं जानता हूं तुम शहजादी हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन अब तो तुम्हें ये काम करना होगा। वो भी अपनी बीवी का साथ देता है और दोनों मियाँ बीवी मिलकर खाना तैयार करते हैं। रोटियां जली भुनी थी, चावल भी आधा कच्चा आधा पक्का था, दोनों मिलजुल कर खाते हैं। इसके बाद सुबह होती है। सुबह शौहर कहता है, अब मैं जा रहा हूँ 4 पैसे कमाने के लिए, मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर की साफ सफाई कर लो, मेरे कपड़े धो लो, घर का पानी भर लो, यानी घर के तमाम काम तुम देखोगी और बाहर की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। इस तरह से वक्त गुजरता रहा। शहजादी मजबूरन जैसे तैसे अपने शौहर के साथ वक्त गुजारती रही। एक दिन वो भी आया जब उसका शौहर आकर कहता है, मैं जितना कमाता हूँ अब उसमें गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आता हूँ जिसके जरिए तुम सूद काटना शुरू कर दो। तुम सूद काटा करो, मैं उसे बाजार में ले जाकर बेचूंगा ताकि 2 पैसे हम ज्यादा कमा लें। शहजादी को ये काम भी नहीं आता था। आखिरकार उसके शौहर ने कहा तो मजबूरन शहजादी ने वो काम करना शुरू किया। सूद तो कम कटता, उसकी उंगलियां कटना शुरू हो गई। आखिरकार उसके शौहर ने कहा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, जाने दो, मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, हम दोनों मिलकर उसके बर्तन बनाएंगे, उसके बाद तुम ले जाकर बाजार में उन बर्तनों को बेचना। अब वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं। फिर बीवी को कहता है, ले जाओ तुम बाजार में बेच कर आओ, तब तक मैं और 4 पैसे कमाने का इंतजाम करता हूँ। शहजादी अपने चेहरे को पूरी तरह से ढांक लेती है और उन मिट्टी के बर्तनों को उठाकर मजबूरन बाजार में ले जाकर खड़ी हो जाती है। वो बाजार में जहां खड़े होकर मिट्टी के बर्तन बेच रही थी, कुछ देर के बाद एक सिपाही का वहां से गुजर होता है। सिपाही ने पैर की ठोकर मारकर वो सारे बर्तन तोड़ दिए और कहा, ऐ लड़की, तुझे तमीज नहीं है, बीच रास्ते में तू बर्तन लेकर खड़ी हो गई, आइंदा बाजार में नजर आई तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर उसने उसको वहां से भगा दिया। शहजादी रोती बिलखती घर वापस आ जाती है। आखिरकार जब शौहर से मुलाकात हुई, बीवी ने उसको सारी बातें बता दी। शौहर ने कहा, ये काम भी तुम्हारे बस का नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, बादशाह के महल में देखता हूँ, हो सकता है कि वहां तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए। अब 2 रोज के बाद शौहर आकर कहता है, बादशाह के महल में बावर्ची खाने में एक मददगार औरत की जरूरत है, मैंने बात कर ली है, चलो कल से तुम्हें वहां काम पर लगा देंगे। दोनों मियाँ बीवी खुश थे। बावर्ची खाने में कम से कम नौकरी मिलेगी तो खाने पीने का इंतजाम तो आसानी से हो जाएगा। अब वो दोनों मियाँ बीवी महल के अंदर रहने लगे। बावर्ची खाने में वो बावर्ची की मदद किया करती थी, यानी कभी सब्जी काट देती, कभी चावल धो देती, कभी आटा गूंद देती। इस तरह से शहजादी अब बावर्ची खाने में काम करने लगी। उसका शौहर भी आता, मुलाकात करता चला जाता। चंद दिनों के बाद महल के अंदर इस बात का शोर होता है कि फला तारीख को महल में एक शादी होने वाली है जिसकी तैयारियां शुरू करनी है। दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में मेहमान आने वाले हैं और उन मेहमानों की खातिर बहुत इंतजाम करना होगा। अब शहजादी भी उन सारे इंतजामात का हिस्सा बन जाती है। बावर्ची खाने में अपने कामों में मसरूफ रहती है। आखिरकार देखते देखते वो शादी का दिन भी आ गया। शहजादी सुबह से देख रही थी, मेहमानों के आने का सिलसिला जारी था। एक से एक खूबसूरत बादशाह और बादशाहजादे महल में आ रहे थे। वो उन तमाम लोगों को देख रही थी और अपने मुकद्दर को
کو کوس رہی تھی، میں بھی شہزادی ہوا کرتی تھی، لیکن میری اپنی حرکتوں نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ آخرکار شادی کا وقت قریب آیا، شہزادی نے اجازت طلب کی، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ باورچی خانے میں موجود باورچی نے تھوڑا سا کھانا باندھ کر شہزادی کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ لے جاؤ اور لے جا کر اپنے گھر میں اسے کھا لینا۔ شہزادی تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ کپڑے میں باندھ کر جیسے ہی باورچی خانے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اچانک اس کے سامنے آ کر وہی داڑھی مونچھ والا شہزادہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی شہزادی کی نظر اس پر پڑی، وہ گھبرا جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے کھانے کی پوٹلی چھوٹ جاتی ہے اور چاروں طرف وہ کھانا بکھر جاتا ہے۔ شہزادہ فوراً شہزادی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہتا ہے، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ شہزادی گھبرا کر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے، میں نے آپ کو پہچان لیا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اس پر شہزادہ دوبارہ شہزادی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر کہتا ہے کہ بات ایسے نہیں بنے گی، تمہیں سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد شہزادہ اس شہزادی کو گھسیٹتا ہوا بڑے دربار میں لاتا ہے اور درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تم سب تو مجھے پہچانتے ہو، میں یہاں کا شہزادہ ہوں اور یہ لڑکی کوئی اور نہیں، یہ فلاں ملک کی شہزادی ہے۔ ان کے والد نے اپنی خوشی اور مرضی سے ان کا نکاح میرے ساتھ کرا دیا ہے۔ اللہ اکبر! جب شہزادی نے یہ سنا تو کانپ گئی، میرا تو نکاح کسی بھکاری کے ساتھ ہوا تھا اور بڑے دربار میں وہ بھکاری نظر کیوں نہیں آتا؟ اب شہزادہ مجمع سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، چونکہ میرا نکاح وہاں ہوا تھا اور علاوہ چند لوگوں کے اس نکاح کا کوئی گواہ نہ تھا، اس وجہ سے آج میں نے یہ نکاح کی تقریب دوبارہ رکھی ہے تاکہ تم سب اس شادی میں شریک ہو سکو، اور میری بیوی کو خود بھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے والد نے اسے سبق سکھانے کے لیے غصے میں اس کا نکاح کسی بھکاری کے ساتھ کرا دیا تھا، اور میری بیوی کو آج تک یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ بھکاری کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر! جب شہزادی نے یہ سنا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شہزادی فوراً اپنے شوہر سے لپٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح کیا جاتا ہے۔ دربار میں اس وقت جتنے لوگ موجود تھے، ان تمام موجود لوگوں میں جب شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بادشاہ کی کرسی کے قریب میں اس کے والد کی کرسی لگی ہوئی تھی، یعنی اس کے والد بھی اس وقت محل کے اندر موجود تھے۔ نکاح کیا گیا اور نکاح کے بعد وہ اپنے والد کے پاس جاتی ہے، ان کے سینے سے لگ کر زاروں قطار روتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے، ابا حضور، آپ مجھے جو سبق دینا چاہتی تھی، آپ مجھے جو سکھانا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ رہ کر میں اس چیز کو نہ سیکھ سکی، پھر آپ نے غصے میں جو فیصلہ کیا، اس غصے میں لیے گئے فیصلے نے مجھے صحیح سبق سیکھنے کا موقع دے دیا۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا، زندگی کیا ہے، دنیا کیا ہے، کسی کو اپنے آپ سے حقیر جاننا، اپنے آپ کو کسی سے بہتر جاننا، یہ کیا ہے؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ والد نے اپنی بیٹی کو دعائیں دی اور اس طرح سے ایک مغرور شہزادی جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی اور لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اس کا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا کر دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میرا کریم ہمیں اور آپ کو بھی ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے، زندگی کو قریب سے سمجھنے، اپنے آپ کو سب سے بہتر، سب سے بڑھتر سمجھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔